Now the first term used is thermodynamic equilibrium. Now what do we mean by thermodynamic equilibrium? Now we may say that our system is in thermodynamic equilibrium when value of its state variables do not change with respect to time. State variables, for example, pressure, volume, temperature. If values of pressure, volume and temperature are not changing with respect to time, in that case we may say that our system is in current state is in thermodynamic equilibrium. Okay, this is the definition for thermodynamic equilibrium. Now next important part is types of process. Now what do we mean by process? Process is the way by which your system will move from initial state to the final state. So that is known as the process. So there are various types of process through which your system can move from initial state to the final state. So we'll start with the important process. You should remember these terms very well because they are used frequently in the chapter. Okay. Now first we'll start with isothermal process. Now the isothermal process का मतलब क्या होगा? When temperature remains constant, मीन्स बाकी जितने भी स्टेट वेरिएबल्स हैं उनका वैल्यू शायद चेंज हो जाएगा, लेकिन उस प्रोसेस के टाइम पे टेम्परेचर उसका चेंज नहीं होगा. तो ऐसे प्रोसेस को हम क्या टर्म करेंगे? आइसोथर्मल प्रोसेस. द प्रोसेस इन विच temperature of the system will remain constant throughout while moving from initial state to the final state. Now next is adiabatic process. अब adiabatic process का मतलब क्या होता है कि कोई भी हीट एक्सचेंज नहीं होगा. हमने यहाँ पे वर्ड हीट लिखा है. हीट का मतलब क्या होता है? एनर्जी. मतलब कोई भी एनर्जी सिस्टम के अंदर नहीं जाएगी और कोई भी एनर्जी सिस्टम से बाहर नहीं आएगी. इसका मतलब सिस्टम और सराउंडिंग के बीच में कोई भी हीट एक्सचेंज नहीं है. तो ड्यूरिंग दी प्रोसेस अगर ऐसा चीज होता है तो हम क्या टर्म करेंगे? एडियाबैटिक प्रोसेस. Okay, so whenever there is no heat exchange between system and surrounding during the process, that process is known as adiabatic process. Next is isobaric process. Now during the change of state from initial to final, अगर pressure constant रहेगा throughout, बाकी state variables change हो सकते हैं लेकिन pressure उसका constant रहेगा, that is known as isobaric process. Okay. Next is isochoric process. आइसोकोरिक प्रोसेस में बाकी स्टेट वेरिएबल्स चेंज होंगे लेकिन उसका वॉल्यूम कांस्टेंट रहेगा थ्रू आउट. दैट विल बी नोन एज आइसोकोरिक प्रोसेस. ओके, तो ये चार हमने देख लिए. टी कांस्टेंट का मतलब क्या? डेल्टा टी विल बी जीरो. डेल्टा टी क्या होता है? फाइनल टेम्परेचर माइनस इनिशियल टेम्परेचर. अगर टेम्परेचर कांस्टेंट है इसका मतलब T2 और T1 का वैल्यू सेम होगा. देयरफॉर द डिफरेंस विल बी हाउ मच? जीरो. सेम गोस फॉर हीट एक्सचेंज. अभी हीट को हम सिंबलाइज करते हैं बाय Q. Either you can use capital Q or you can also use small q. कोई बुक्स में कैपिटल Q है, कोई बुक्स में स्मॉल q है. दोनों किसको रिप्रेजेंट करते हैं? हीट को. करेक्ट. सो अगर यहाँ पे हीट एक्सचेंज नहीं है तो हीट कितना ले लेंगे हम? जीरो, बिकॉज कोई भी हीट एक्सचेंज नहीं हो रही. नाउ नेक्स्ट इज प्रेशर कांस्टेंट. अगर प्रेशर कांस्टेंट डेल्टा पी क्या हो जाएगा? जीरो. सेम लाइक टेम्परेचर. डेल्टा पी इज व्हाट? P2 माइनस P1. फाइनल प्रेशर माइनस इनिशियल प्रेशर. अगर प्रेशर कांस्टेंट है इसका मतलब P2 और P1 सेम होंगे, तो डेल्टा पी का वैल्यू कितना हो जाएगा? जीरो. एंड सेम गोस फॉर वॉल्यूम. डेल्टा V इज व्हाट? V2 minus P2. Okay, these are the four process: isothermal, adiabatic, isobaric, isochoric. Now next important process is the reversible process. सबका मतलब याद रखो अभी के लिए because ये बहुत हम लोग यूज करने वाले हैं. Now next is reversible process. अब ये reversible process क्या होता है? जो आगे भी जाएगी और पीछे भी आ सकती है. इसको क्या बोलते हैं हम? reversible. The process which can move forward as well as backward is known as reversible process. लेकिन उसका definition कैसे होगा? अभी इसके डेफिनेशन को समझाने के लिए मैं तुमको एग्जांपल देती हूँ टग ऑफ वॉर का. टग ऑफ वॉर में क्या होता है? रस्सी रहेगी, यहाँ पे कुछ लोग खड़े रहेंगे एंड यहाँ पे कुछ लोग खड़े रहेंगे. ठीक है. तो इमेजिन करो टग ऑफ वॉर में ये साइड पे 10 पीपल है एंड ये साइड पे सिर्फ एक ही इंसान है. ठीक है. 10 पीपल हेल्दी, 1 पीपल ये वीक है. ठीक है. दुबला पतला सा इंसान है. तो टग ऑफ वॉर अगर होगा तो क्या होगा? टग ऑफ वॉर में देखो दो फोर्स होते हैं. हम दो फोर्स की बात करते हैं यहाँ पे, ड्राइविंग फोर्स एंड अपोजिंग फोर्स. फॉर एग्जांपल ये इसको अपनी तरफ खींच रहा है तो ये हो गया उसका ड्राइविंग फोर्स. ठीक है. एंड वो उसको अपनी तरफ खींचेगा मतलब ये क्या हो गया? उसका अपोजिंग फोर्स. ठीक है. सो अगर ऐसा वाला मैंने केस लिया कि यहाँ पे 10 लोग हैं और यहाँ पे एक ही इंसान है, तो उस केस में क्या होगा? इजीली ड्राइविंग फोर्स इस केस में ज्यादा होगा कंपेयर टू अपोजिंग फोर्स. सो ऑटोमेटिकली रिएक्शन कहाँ पे जाएगी? ये साइड पे चली जाएगी. करेक्ट. क्या हुआ? उस साइड जा सकती है कभी? नॉट पॉसिबल. वो एक झटके में खींचेंगे 10 के 10 लोग एंड तुम्हारा रिएक्शन, तुम्हारा वो जो पर्सन है वो इस तरफ आ जाएगा एंड तुम जीत जाओगे. करेक्ट है. तो ऐसी वाली प्रोसेस में क्या हो रहा है? ड्राइविंग फोर्स और अपोजिंग फोर्स में बहुत ज्यादा डिफरेंस है. यहाँ पे 10 है और यहाँ पे 1. तो यहाँ पे ड्राइविंग फोर्स बहुत हाई है, अपोजिंग फोर्स बहुत लो है. इसका मतलब ड्राइविंग फोर्स और अपोजिंग फोर्स में बहुत ज्यादा डिफरेंस है.
तो रिएक्शन कहाँ जाती है, सिर्फ एक ही साइड पे जाती है, वो कभी भी उल्टा नहीं जा सकती। तो ऐसे वाले प्रोसेस को हम क्या टर्म करते हैं, इरिवर्सिबल। क्यों रिवर्सिबल, बिकॉज वो अपोजिट डायरेक्शन में कभी नहीं जा सकती। ठीक है ना, उसके अकॉर्डिंग हम क्या डिफाइन करेंगे अभी, रिवर्सिबल प्रोसेस। सेम फॉर एग्जांपल यहाँ पे 10 लोग हैं, यहाँ पे भी 10 लोग ही है, ठीक है, दोनों इक्वली हेल्दी है, 10 के 10 लोग क्या इक्वली हेल्दी है। तो इस केस में क्या होगा, ड्राइविंग फोर्स और अपोजिंग फोर्स ऑलमोस्ट सेम होगा, उनमें बहुत कम डिफरेंस होगा। सो कभी इस तरफ तुम्हारा रस्सी इस तरफ जाएगा, कभी उस तरफ जाएगा। तो यहाँ पे क्या होगा, कभी ड्राइविंग फोर्स कभी लेफ्ट साइड में जा रहा है, कभी राइट साइड में जा रहा है। सो इस केस में ड्राइविंग फोर्स और अपोजिंग फोर्स में डिफरेंस बहुत कम है, इसलिए रिएक्शन कभी राइट साइड में जाती है, कभी लेफ्ट साइड में जाती है। तो दोनों साइड में जाना पॉसिबल है, तो उस रिएक्शन को हम क्या बोलेंगे, रिवर्सिबल प्रोसेस। ठीक है, सो विद द हेल्प ऑफ एग्जांपल ऑफ टग ऑफ वॉर आप समझ सकते हो कि रिवर्सिबल प्रोसेस का मतलब क्या है। सो व्हेनेवर ड्राइविंग फोर्स एंड अपोजिंग फोर्स हैव अ वेरी स्मॉल डिफरेंस इन देयर वैल्यूज, in that case your reaction becomes reversible। लेकिन अगर वो डिफरेंस बहुत ज्यादा हाई होगा तो रिएक्शन becomes irreversible in nature। ठीक है, जनरली नेचर में जितनी भी रिएक्शंस होती है, वो कैसी होती है, नेचर में वो इरिवर्सिबल होती है। ठीक है, रिवर्सिबल नेचर जनरली हम लोग इंड्यूस करते हैं, पर नेचुरली जितनी भी प्रोसेस होती है दे आर इरिवर्सिबल इन दी नेचर। ओके, सो ये डेफिनेशन बहुत अच्छे से याद रखो। रिवर्सिबल प्रोसेस इज द प्रोसेस in which driving force and opposing force have a very small difference in their values. That's why reaction can move in forward as well as in backward direction. थोड़ा सा अगर ये बढ़ गया तो इस साइड जाएगी, थोड़ा सा अगर ये बढ़ गया तो इस साइड जाएगी। Okay? Now we'll see some of the features of reversible process. Now in reversible process there are two forces, driving force and opposing force. If driving force is greater than opposing force, then reaction will move in forward direction. But if I want to reverse the reaction, what I need to do is to increase slightly the opposing force. Since the difference is very small, even a slight increase will reverse your reaction. Okay. Next is reaction occurs in infinite number of steps. अब तुम एग्जाम्पल लोगे टग ऑफ वॉर का, अगर दोनों साइड पे इक्वल स्ट्रेंथ के लोग खड़े हैं, इक्वल नंबर एंड इक्वल स्ट्रेंथ के लोग खड़े हैं, तो क्या तुम एकदम से जीत जाओगे? तुम्हारा जो ये वॉर है, टग ऑफ वॉर है, बहुत देर तक चलेगा। क्यों? बिकॉज कभी उनके तरफ जा रहा है, कभी तुम्हारे तरफ आ रहा है, कभी तो उनके तरफ जा रहा है। तो इसका मतलब जो तुम्हारा फाइनल स्टेप है उसको आने में बहुत टाइम लग रहा है, बिकॉज योर रिएक्शन ऑकर्स इन इन्फिनाइट नंबर ऑफ स्टेप्स, कभी राइट कभी लेफ्ट, कभी राइट कभी लेफ्ट। इसका मतलब रिवर्सिबल रिएक्शन बहुत सारे स्टेप्स में होती है, एक स्टेप में कंप्लीट कभी भी नहीं होगी। नेक्स्ट, अभी वो मल्टीपल स्टेप्स में हो रही है, अगर वो बहुत सारे स्टेप्स में कंप्लीट हो रही है, इसका मतलब उससे मुझे मैक्सिमम वर्क मिलता है। अभी इमेजिन करो, अभी टग ऑफ वॉर में दोनों इक्वल स्ट्रेंथ के लोग होंगे, तो तुम इजीली जीतते नहीं हो। इसका मतलब क्या, तुम्हारी बहुत सारी एनर्जी लूज होती है खेलते खेलते, जैसे जैसे टाइम बढ़ेगा तुम बहुत सारी एनर्जी लूज कर रहे हो। एनर्जी लूज करना मतलब क्या, तुम मैक्सिमम वर्क दे रहे हो, इनपुट क्या है तुम्हारा, मैक्सिमम वर्क। सो इन दिस केस अगर तुम्हारा प्रोसेस रिवर्सिबल है तो तुमको क्या मिलेगा, हमेशा मैक्सिमम वर्क। ये पॉइंट काफी इंपॉर्टेंट है। वर्क का जब हम रिलेशन देखेंगे तो जब भी मैक्सिमम वर्क के ऊपर क्वेश्चन आता है तो मैक्सिमम वर्क कब पॉसिबल है, ओनली इन केस ऑफ रिवर्सिबल प्रोसेस। ओके, एंड नेक्स्ट, आफ्टर ईच स्टेप सिस्टम अटेन्स मैकेनिकल इक्विलिब्रियम। अभी इसका क्या मतलब होता है, अभी टग ऑफ वॉर का जब हम एग्जांपल लेते हैं, उस केस में भी जब फॉर एग्जांपल एक बार ड्राइविंग फोर्स की वजह से वो एक साइड पे आ गया, उसके बाद थोड़ी देर तक वो उसी स्टेज में रहता है, उसके बाद अपोजिंग फोर्स इंक्रीज हुआ तो वो साइड पे जाएगा। तो आफ्टर ईच एंड एवरी स्टेप सिस्टम में इक्विलिब्रियम पे आ जाएगा, ऐसा लगेगा कि ऑलमोस्ट वो स्टेबल हो चुका है, लेकिन उसके बाद रिएक्शन और आगे बढ़ती जाएगी विद ईच नंबर ऑफ स्टेप्स। ओके, दिस आर द 4 फीचर्स ऑफ रिवर्सिबल प्रोसेस। Now we'll start with the first derivation in your chapter. The first derivation is related to pressure volume work. Okay, so कोई भी एक normal process है जिसे सिस्टम इनिशियल स्टेट से फाइनल स्टेट तक जा रही है, तो उसमें कितना वर्क किया होगा वो हमको अभी यहाँ पे स्टडी करना है। तो इस केस में हम जो वर्क अभी यहाँ पे जिसका डेरिवेशन करने वाले हैं, वी आर कंसीडरिंग द एक्सपांशन ऑफ द गैस। ठीक है, सो इमेजिन करो एक बीकर में तुमने गैस फिल की है, एंड इस गैस के ऊपर तुमने क्या फिट किया है, एक फ्रिक्शनलेस पिस्टन। तो जो ब्लू कलर में मैंने मार्क किया है वो क्या है, फ्रिक्शनलेस पिस्टन है। पिस्टन क्या होता है, पिचकारी में जो पीछे तुम लगाते हो, दैट इज योर पिस्टन। सो यहाँ पे एक फ्रिक्शनलेस पिस्टन है, वो हमने क्या किया, इस बीकर में गैस फिल किया अंदर, एंड उसमें क्या लगा दिया, पिस्टन लगा दिया। ठीक है, इस पिस्टन का जो एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन है वो कितना है, ए है। सो ए इज द एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ऑफ माय पिस्टन। अंदर जो मैंने गैस फिल की है उसने कितना वॉल्यूम ऑक्यूपाई किया है, V1। सो V1 इज द इनिशियल वॉल्यूम व्हिच इज ऑक्यूपाइड बाय योर गैस। PI का मतलब यहाँ पे क्या है, इंटरनल प्रेशर ऑफ द गैस। ओके, अभी यहाँ पे हमने क्या कंसीडर किया है कि विद टाइम ही गैस क्या हो रही है, यहाँ पे एक्सपांड हो रही है।
ठीक है, चाहे तुमने तुमने इसको हीट किया होगा या कोई कंडीशन की वजह से तुम्हारा ये जो गैस है अंदर जो तुमने फिट किया है वो क्या हो रही है, यहाँ पे एक्सपांड हो रही है। सो अगर गैस एक्सपांड होगी तो क्या होगा, ज़्यादा वॉल्यूम ऑक्यूपाई करता है। सो बिकॉज ऑफ एक्सपांशन ये जो पिस्टन है वो क्या करेगा, ऊपर मूव करेगा, बिकॉज तुम्हारी गैस क्या हो रही है, यहाँ पे एक्सपांड हो रही है। तो बिकॉज ऑफ एक्सपांशन, अभी एक्सपांशन कब पॉसिबल है, देखो यहाँ पे बाहर क्या लिखा है मैंने, एक्सटर्नल प्रेशर, ये वाला है अंदर इंटरनल प्रेशर ऑफ द गैस, एंड पी एक्सटर्नल का मतलब कि तुमने बाहर उसको एटमॉस्फेयर में रखा है, तो एटमॉस्फेयर का प्रेशर कितना है, PEXT, ठीक है। तो अभी यहाँ पे अगर तुम्हारी गैस एक्सपांड हो रही है, तो गैस एक्सपांड क्यों हो रही है, बिकॉज ऑफ इंटरनल प्रेशर, तो गैस यहाँ पे एक्सपांड होगी, एक्सपांशन से क्या होगा, पिस्टन को ऊपर लिफ्ट कर देगी, बिकॉज ऑफ एक्सपांशन, ऊपर लिफ्ट करके कितना डिस्प्लेस किया, डिस्प्लेसमेंट ऑफ द पिस्टन इज हाउ मच, dx। सो dx क्या रिप्रेजेंट करता है यहाँ पे, डिस्प्लेसमेंट ऑफ द पिस्टन ड्यू टू एक्सपांशन ऑफ द गैस, ओके। अभी इनिशियली उसका वॉल्यूम कितना था, V1, लेकिन आफ्टर एक्सपांशन उसका वॉल्यूम बढ़ गया, लेट द फाइनल वॉल्यूम बी V2 ऑफ द गैस आफ्टर एक्सपांशन, ओके ना। अभी यहाँ पे तुमको क्या निकालना है, अभी एक्सपांशन हुआ है, एक्सपांशन हुआ है मतलब किसी ना किसी ने तो वर्क किया, तब जाके पिस्टन ऊपर मूव हुआ है, अपने आप तो पिस्टन मूव नहीं किया है। तो इसका मतलब अगर पिस्टन ऊपर मूव कर रहा है, इसका मतलब उसके ऊपर कोई ना कोई वर्क किया गया है, तुम्हारा काम है तुमको वही वर्क यहाँ पे निकालना है, क्लियर। सो योर एम इज टू कैलकुलेट द वर्क डन, बिकॉज यहाँ पे पिस्टन का डिस्प्लेसमेंट हुआ है, एंड डिस्प्लेसमेंट कब पॉसिबल है, ओनली व्हेन वर्क इज डन। नाउ हाउ टू सॉल्व द न्यूमेरिकल। अभी यहाँ पे इस डेरिवेशन के लिए वर्क तो हुआ है, वर्क का बेसिक फॉर्मूला क्या होता है, फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट, ओके, वर्क इज इक्वल टू फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। अभी यहाँ पे मैं इमेजिन कर रही हूँ, अभी देखो एक्सटर्नल प्रेशर कहाँ एक्ट कर रहा है, वो पुश कर रहा है पिस्टन को नीचे, लेकिन पिस्टन का मूव कर रही है ऊपर, इसका मतलब तुमने वर्क किया है अगेंस्ट दिस एक्सटर्नल प्रेशर, ओके। सो राइट डाउन वर्क इज इक्वल टू, I'll take force as F and displacement as, displacement कितना है पिस्टन का, dx, फोर्स कितना ले लिया मैंने, F। अभी यहाँ पे मैं साइन डालूंगी माइनस, बिकॉज मैं वर्क किसके अगेंस्ट कंसिडर कर रही हूँ, एक्सटर्नल प्रेशर के अकॉर्डिंग कंसिडर कर रही हूँ, ओके। नाउ वर्क इज इक्वल टू माइनस F dx, वाई माइनस, बिकॉज एक्सटर्नल प्रेशर डाउनवर्ड एक्ट कर रहा है और पिस्टन अपवर्ड मूव कर रहा है। So when applied force and displacement are in opposite direction, तो साइन क्या आती है वहाँ पे, माइनस आती है। So माइनस साइन इंडिकेट कर रहा है कि जो तुमने फोर्स अप्लाई, जो एक्सटर्नल फोर्स है वो डाउनवर्ड्स है, एंड तुम्हारा पिस्टन मूव कर रहा है अपवर्ड्स, ओके। ना ये फोर्स कैसे निकालेंगे अभी हम, ना प्रेशर का बेसिक फॉर्मूला क्या होता है, प्रेशर इज फोर्स अपॉन एरिया, ओके। सो यहाँ पे हम कौन सी प्रेशर की बात कर रहे हैं, एक्सटर्नल प्रेशर। सो P एक्सटर्नल विल बी इक्वल टू फोर्स हमने F कंसिडर किया है, अपॉन कितने एरिया पे ऐड कर रहा है फोर्स, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ऑफ द पिस्टन पे ऐड कर रहा है, दैट इज A, ओके। सो इसके अकॉर्डिंग F क्या मिलेगा, F इज इक्वल टू P एक्सटर्नल इनटू A। सो इंस्टेड ऑफ F हम क्या सब्स्टिट्यूट कर देंगे यहाँ पे, P एक्सटर्नल इनटू A, देयरफॉर W इज इक्वल टू माइनस, इंस्टेड ऑफ F हमने क्या पुट कर दिया, P एक्सटर्नल इनटू A इनटू dx, ओके। नाउ नेक्स्ट, अभी A dx मतलब क्या होता है, यहाँ पे ये एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन है पिस्टन का, dx यहाँ पे क्या है, डिस्प्लेसमेंट ऑफ द पिस्टन। सो ये इमेजिन करो, ये वाला पार्ट क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, सिलेंडर रिप्रेजेंट कर रहा है, ये सिलेंडर रिप्रेजेंट कर रहा है ना, देखो दोनों का एरिया क्रॉस कितना है, A है, एंड यहाँ पे डिस्टेंस कितना दिया गया है, dx। सो इट रिप्रेजेंट्स व्हाट, अ सिलेंडर, एंड इसके अकॉर्डिंग वॉल्यूम क्या होगा सिलेंडर का, वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर का फॉर्मूला क्या होता है, पाई आर स्क्वायर एच होता है, ठीक है। यहाँ पे पाई आर स्क्वायर क्या इंडिकेट करता है, क्रॉस सेक्शनल एरिया, सो इंस्टेड ऑफ पाई आर स्क्वायर हम क्या लिख सकते हैं, ए, एंड एच का मतलब हाइट, यहाँ पे हाइट कितनी है, dx। सो ये इस पर्टिकुलर एरिया का जो वॉल्यूम है वो क्या है, a dx, ठीक है। अभी ये कैसे मिल सकता है, ये जो वॉल्यूम है ये एक्चुअली में क्या है, इट इंडिकेट्स व्हाट, वॉल्यूम चेंज, डेल्टा v। हाउ, बिकॉज ये था फाइनल वॉल्यूम, ये है इनिशियल वॉल्यूम, अगर मैं दोनों का डिफरेंस लूंगी तो मुझे क्या मिलेगा, ये वाला वॉल्यूम मिलेगा ना। इफ आई टेक डिफरेंस ऑफ V2 एंड V1, तो जो वॉल्यूम मिलेगा वो कौन सा मिलेगा, मुझे ये वाला वॉल्यूम मिलेगा, करेक्ट है। तो ये क्या रिप्रेजेंट करेगा, डेल्टा V, डेल्टा V इज व्हाट, चेंज इन वॉल्यूम, एंड चेंज इन वॉल्यूम का एक और फॉर्मूला क्या मिल गया मुझे यहाँ पे, A dx। सो हम क्या कर सकते हैं, इंस्टेड ऑफ A dx आई कैन राइट डाउन डेल्टा V। डेल्टा V इज नथिंग बट चेंज इन दी वॉल्यूम। दैट इज माइनस P एक्सटर्नल, डेल्टा V निकालने का एक और मेथड क्या है, एक तो मेथड है आइदर आई कैन यूज A dx, और कैसे निकाल सकते हैं हम डेल्टा V, डेल्टा V इज व्हाट, फाइनल वॉल्यूम माइनस इनिशियल वॉल्यूम, दैट इज V2 माइनस V1।
दिस इज योर फॉर्मूला फॉर दी वर्क. सो प्रेशर वॉल्यूम वर्क का फॉर्मूला क्या है? W इज इक्वल टू माइनस P एक्सटर्नल, एक्सटर्नल प्रेशर मल्टीप्लाइड बाय वॉल्यूम चेंज. वॉल्यूम चेंज इज V2 माइनस V1. ओके, तो ये हो गया नॉर्मल प्रेशर वॉल्यूम वर्क. किसके लिए हमने कंसिडर किया? एक्सपांशन के लिए. वैसे कंप्रेशन के लिए भी हम सेम फॉर्मूला यूज कर सकते हैं. अभी यहाँ पे याद रखना, यहाँ पे माइनस साइन है. ये माइनस साइन को इग्नोर मत करना. माइनस साइन काफी इंपॉर्टेंट है. इसका क्या सिग्निफिकेंस है वो हम आगे देखेंगे. So we got the formula for pressure, general pressure volume work, that is minus P external V2 minus V1. This is external pressure, not internal pressure. Now, what are the sign conventions for work? It is important. Negative sign should not be ignored. ये formula नहीं लिखना है. अभी हमने जो डेरिवेशन देखा वो हमने किसके अकॉर्डिंग देखा था? एक्सपांशन के अकॉर्डिंग देखा कि गैस एक्सपांड होती है. सो अगर एक्सपांशन होता है इसका मतलब क्या? फाइनल वॉल्यूम विल बी ग्रेटर देन इनिशियल वॉल्यूम, दैट इज V2 is greater than V1. अगर V2 is greater than V1 तो क्या आएगा वैल्यू? V2 minus V1 will be a positive quantity. Positive and negative will give you the answer as negative. तो जो भी आंसर आएगा वर्क का वो क्या आएगा? नेगेटिव साइन के साथ आएगा. अगर मैं केस लेती हूँ कॉम्प्रेशन का, कॉम्प्रेशन में क्या होता है? फाइनल वॉल्यूम इज लेस देन दी इनिशियल वॉल्यूम बिकॉज गैस कॉम्प्रेस हो रही है. सो अगर ये वाला केस में यहाँ पे पुट करती हूँ V2 इज स्मॉलर देन V1 तो ये वाला पार्ट क्या आएगा? नेगेटिव आएगा. एंड नेगेटिव नेगेटिव आंसर क्या मिलेगा तुम्हें? पॉजिटिव मिलेगा. तो इस केस में याद क्या रखना है? अगर एक्सपांशन का वर्क है तो उसका साइन क्या होता है? माइनस. और अगर कॉम्प्रेशन का वर्क है तो साइन क्या आता है उसका? ऑटोमेटिकली पॉजिटिव आता है. अभी इसका मतलब क्या है? ये क्यों इंपॉर्टेंट है? नेगेटिव साइन का मतलब एक्सपांशन. अभी एक्सपांशन क्यों हुआ? बिकॉज गैस ने एक्सपांड किया, गैस ने खुद ने एक्सपांड किया. करेक्ट. तो गैस पिस्टन को ऊपर लिफ्ट कर रही थी. करेक्ट है. तो गैस पिस्टन को ऊपर लिफ्ट कर रही थी. यहाँ पे वर्क कौन कर रहा था? गैस कर रही थी. सो व्हेन एंड गैस मतलब यहाँ पे क्या है? तुम्हारा सिस्टम है. ओके. सो व्हेन वर्क इज डन बाय द सिस्टम, वर्क क्या आता है? हमेशा नेगेटिव. बिकॉज यहाँ पे जो पहला वाला केस जो हमने केस देखा था उसमें गैस पिस्टन को ऊपर लिफ्ट कर रही है, मतलब वर्क कौन कर रही है? गैस. एंड गैस का मतलब यहाँ पे क्या है? तुम्हारी सिस्टम है. सो व्हेनेवर वर्क इज डन बाय द सिस्टम, वर्क इज ऑलवेज टेकन एज नेगेटिव. नेगेटिव साइन से यूज करना है. एंड अगर हम लोग कंप्रेशन करते हैं, कंप्रेशन में क्या करेंगे? हम पिस्टन के ऊपर प्रेशर बाहर से अप्लाई करेंगे तब जाके वर्क होगा. तो यहाँ पे वर्क कौन कर रहा है? तुम कर रहे हो. तुम कर रहे हो मतलब तुम किसके पार्ट हो? सराउंडिंग के पार्ट हो. तो जब सराउंडिंग सिस्टम के ऊपर वर्क करती है तब वर्क क्या आता है? पॉजिटिव. ओके. सो इन केस ऑफ कंप्रेशन यू आर डूइंग द वर्क. यू आर डूइंग द वर्क मींस सराउंडिंग इज डूइंग द वर्क. एंड किसके ऊपर वर्क कर रही है? ऑन द सिस्टम. ओके. सो व्हेनेवर वर्क इज डन बाय द सराउंडिंग ऑन द सिस्टम, वर्क का वैल्यू हमेशा आएगा? पॉजिटिव लेना है. ठीक है. तो जब भी हम आंसर लिखते हैं तो हम साइन के साथ लिखते हैं बिकॉज साइन इंडिकेट करता है कि वर्क सिस्टम ने किया है कि सिस्टम के ऊपर वर्क किया. तो ये साइन इसलिए इंपॉर्टेंट है. तो ये साइन का मतलब याद रखो, आगे हम लोग इसका भी यूज करने वाले हैं. ठीक है. सिमिलरली हीट के लिए भी साइन कन्वेंशंस है. ठीक है. नाउ Q का वैल्यू पॉजिटिव होगा, इसका मतलब रिएक्शन इज एंडोथर्मिक. व्हाट इज एंडोथर्मिक? जब सिस्टम में हीट ऐड होगी तो रिएक्शन इज एंडोथर्मिक. उस केस में जो Q का वैल्यू होगा मैग्नीट्यूड तो रहेगा पर साथ में क्या डालना पड़ेगा तुमको? साइन, प्लस साइन. फॉर एग्जाम्पल इफ आई से 50 किलो जूल ऑफ हीट इज एडेड टू द सिस्टम तो हम क्या लिखेंगे? प्लस 50 किलो जूल. ठीक है. बिकॉज वो कैसी है? एंडोथर्मिक. नाउ ऐसा भी हम बोल सकते हैं कि 50 किलो जूल इज गिवन आउट बाय द सिस्टम. तो इस केस में वैल्यू तो 50 किलो जूल ही है तो यहाँ पे साइन क्या लिया जाएगा? नेगेटिव बिकॉज हीट रिलीज हो रही है. सो व्हेनेवर हीट इज गिवन आउट बाय द सिस्टम Q को हम नेगेटिव लेंगे एंड व्हेनेवर हीट इज एडेड टू द सिस्टम हम Q का वैल्यू पॉजिटिव लेंगे. तो ये साइन कन्वेंशंस याद रखो बिकॉज हमको फर्स्ट लॉ में काफी यूजफुल है. नाउ द नेक्स्ट डेरिवेशन रिलेटेड टू वर्क इज द कांसेप्ट ऑफ मैक्सिमम वर्क. हमने पहले देख लिया मैक्सिमम वर्क कब पॉसिबल है? ओनली इन केस ऑफ रिवर्सिबल प्रोसेस. ओके. सो वही केस हम लेंगे कि गैस लिया है हमने, सेम डायग्राम. गैस को हमने एक बीकर में लिया है एंड उसके ऊपर एक पिस्टन, फ्रिक्शनलेस पिस्टन को फिट किया है. नाउ विद टाइम योर गैस इज गेटिंग एक्सपांडेड. तो गैस अगर एक्सपांड होगी, इंटरनल प्रेशर बाकी सब क्वांटिटीज एक्जैक्टली सेम है. ठीक है. सो अगर गैस एक्सपांड होगी तो क्या होगा? वो पिस्टन को ऊपर लिफ्ट करेगी एंड वो फाइनल पोजीशन पे आ जाएगा. ब्लू का मतलब है उसका इनिशियल पोजीशन, रेड का मतलब है यहाँ पे पिस्टन का फाइनल पोजीशन. सो गैस अगर एक्सपांड हो रही है तो पिस्टन को ऊपर लिफ्ट कर रही है. piston is getting displaced by dx. ठीक है. initial volume of the gas is v1 and after expansion volume is v2. again area cross section of the piston is taken as a and external pressure कितना है? PEXT. ओके. अभी हमारा फॉर्मूला वही है वर्क का. अभी हमने क्या देखा था? वर्क का फॉर्मूला क्या है? प्रेशर वॉल्यूम वर्क दैट इज माइनस P एक्सटर्नल V2 माइनस V1. ये तुम्हारा फॉर्मूला था. जनरल प्रेशर वॉल्यूम वर्क हम उसको बोलते हैं PV वर्क. ठीक है.
लेकिन अगर मुझे मैक्सिमम वर्क चाहिए तो मुझे कौन सी कंडीशन अप्लाई करनी पड़ेगी, रिवर्सिबल की। ठीक है, रिवर्सिबल प्रोसेस क्या होती है, जिसमें ड्राइविंग फोर्स और अपोजिंग फोर्स में बहुत ही कम डिफरेंस होता है। अभी तुम्हारे इस एग्जाम्पल में देखो, यहाँ पे पी आई क्या हो गया, ड्राइविंग फोर्स, बिकॉज वो एक्सपांड करवा रहा है, एंड पी एक्सटर्नल क्या हो गया यहाँ पे, अपोजिंग फोर्स। सो पी आई इज योर ड्राइविंग फोर्स एंड पी एक्सटर्नल इज योर अपोजिंग फोर्स। सो अगर मुझे ये कंडीशन अप्लाई करना है, इसका मतलब difference between internal pressure and external pressure should be very very small, and for very small term हम क्या यूज करते हैं, डी लिखते हैं, डीपी। ठीक है, तो ये किसी कौन सी कंडीशन हो गई, रिवर्सिबल प्रोसेस की कंडीशन हो गई है, दैट इंटरनल प्रेशर एंड एक्सटर्नल प्रेशर, बिकॉज इंटरनल प्रेशर यहाँ पे ड्राइविंग फोर्स हो गया, एक्सटर्नल प्रेशर यहाँ पे अपोजिंग फोर्स हो गया। सो अगर दोनों के बीच का डिफरेंस बहुत कम है, बहुत कम मतलब हमने कैसे सिंबलाइज किया है, डीपी से। सो डीपी इज द वेरी वेरी स्मॉल डिफरेंस बिटवीन इंटरनल एंड एक्सटर्नल प्रेशर। तो कौन सा कंडीशन हो गया, ये रिवर्सिबल प्रेशर कंडीशन हो गया। ठीक है, तो हम यही कंडीशन को हम यहाँ पे यूज करने वाले हैं टू सॉल्व फर्दर। ओके, अभी यहाँ पे वन मोर थिंग, रिवर्सिबल प्रोसेस में एक और चीज होती है, रिवर्सिबल प्रोसेस ऑकर्स इन इनफिनाइट नंबर ऑफ स्टेप्स। इसका मतलब यहाँ पे बहुत सारे स्टेप्स होंगे, नॉट वन स्टेप। अभी हमने जो प्रीवियस केस में जो एग्जांपल देखा था, जिससे हमने ये फॉर्मूला डिराइव किया है, वहां पे सिर्फ एक ही स्टेप था, ये एक्सपांड होती है और पिस्टन ऊपर अपने आप लिफ्ट हो जाता है। सो इजीली फर्स्ट इनिशियल स्टेप से फाइनल स्टेप पे एक ही स्टेप में पहुंच जाता है। ठीक है, लेकिन अगर प्रोसेस रिवर्सिबल है तो वो एकदम से यहाँ से यहाँ नहीं पहुंचेगा, पहले थोड़ा सा ऊपर जाएगा, फिर नीचे आएगा, फिर ऊपर जाएगा, फिर नीचे आएगा। क्यों? बिकॉज इंटरनल और एक्सटर्नल प्रेशर में बहुत ही कम डिफरेंस है। तो इसका मतलब मुझे जो वर्क मिलेगा वो स्टेप वाइज मिलेगा। फॉर एग्जाम्पल अगर 10 स्टेप्स है, मैं कंसिडर कर रही हूँ मेरा प्रोसेस 10 स्टेप्स में कंप्लीट हो रहा है, तो फॉर एग्जाम्पल फर्स्ट स्टेप में वर्क है W1, सेकेंड स्टेप में वर्क है W2, ऐसे करते करते 10, तो मुझे कितना मिलेगा टोटल वर्क? टोटल वर्क विल बी W1 प्लस W2 प्लस W3 अप टू W10। करेक्ट है? तो हम लोग यहाँ पे क्या कैलकुलेट करते हैं, ईच एंड एवरी स्टेप का वर्क कैलकुलेट करते हैं, एंड एंड में टोटल वर्क निकालने के लिए सारे स्टेप के वर्क्स को हम ऐड करते हैं, तो मुझे क्या मिल जाएगा यहाँ पे, टोटल वर्क मिल जाएगा। ओके, तो वही ये चीज हम यहाँ पे करने वाले हैं। ऐसा क्यों कर रहे हैं हम? बिकॉज रिवर्सिबल प्रोसेस एक स्टेप में नहीं होती, इट ऑकर्स इन इनफिनाइट नंबर ऑफ स्टेप्स। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, अभी हम सिंगल सिंगल स्टेप का वर्क निकालते जाएंगे। सो आई स्टार्ट विथ वन स्टेप, जैसे यहाँ पे हम कह सकते हैं माइनस पी एक्सटर्नल, V2 माइनस V1 इज व्हाट, डेल्टा V। डेल्टा का रिप्रेजेंट करता है लार्ज चेंज। ओके, अभी मैं अगर वन स्टेप की बात करूं, वन स्टेप में कितना वर्क होगा, लेट दी वर्क डन इन वन स्टेप इज DW, बिकॉज वन स्टेप में स्मॉल वर्क होगा। फॉर स्मॉल वर्क हमने क्या सिंबल यूज किया, DW। ओके, दैट विल बी इक्वल टू माइनस पी एक्सटर्नल। फॉर लार्ज चेंज डेल्टा V यूज करते हैं, फॉर स्मॉल चेंज ऑफ वॉल्यूम हम क्या यूज करेंगे, D, बिकॉज स्मॉल स्टेप में वर्क डन भी स्मॉल होगा एंड वॉल्यूम चेंज भी काफी स्मॉल होगा। दिस इज द वर्क डन इन वन स्टेप। सो अगर मुझे सब स्टेप का निकालना तो क्या करना पड़ेगा, सम ऑफ ऑल दी स्टेप्स। बट स्टेप्स कितने हैं, इनफिनिट, तो हम क्या ऐड करते जाएंगे, नहीं, हम सिंपली क्या कर सकते हैं, इंटीग्रेट कर सकते हैं, बिकॉज इंटीग्रेशन से एक्चुअली क्या होगा, सारे जो स्टेप्स है उनके वर्क को हम ऐड कर सकते हैं। सो इंटीग्रेटिंग द अबव इक्वेशन, तो यहाँ पे हम इंटीग्रेट करेंगे। तो अगर मैंने DW को इंटीग्रेट किया, इसका मतलब क्या, मैं सारे स्टेप्स के वर्क को ऐड कर दूं, मुझे क्या मिलेगा, टोटल वर्क, दैट इज W। ओके, दैट विल बी इक्वल टू, अभी यहाँ पे P एक्सटर्नल, यहाँ पे ये स्टेप इंपॉर्टेंट है, P इंटरनल इज माइनस P एक्सटर्नल, दैट इज इक्वल टू DQ। तो इसके अकॉर्डिंग व्हाट विल बी P एक्सटर्नल, इस स्टेप के अकॉर्डिंग P एक्सटर्नल विल बी इक्वल टू PI माइनस DP। करेक्ट? सो इंस्टेड ऑफ P एक्सटर्नल हम क्या पुट कर देंगे यहाँ पे, PI माइनस DP वाले स्टेप में। ओके, इसको कुछ कोई भी इक्वेशन हम नंबर कर सकते हैं, फॉर एग्जांपल इसको 1, तो आई एम सब्स्टिट्यूटिंग 1 फ्रॉम दिस पार्ट इन दिस इक्वेशन। ओके, सो यहाँ पे हमने पुट किया माइनस, इंस्टेड ऑफ P एक्सटर्नल राइट डाउन PI माइनस DP इंटू DV। ओके, दैट इज इक्वल टू इंटीग्रेशन PI DP एक साथ हो जाएगा, सॉरी PI DV, माइनस साइन बाहर है, एंड प्लस माइनस माइनस प्लस DP इंटू DV। ओके, अभी यहाँ पे देखना, DP का मतलब क्या है, वेरी वेरी स्मॉल डिफरेंस इन प्रेशर, DV का मतलब क्या है, वेरी वेरी स्मॉल डिफरेंस इन वॉल्यूम। फॉर एग्जाम्पल अगर इसका वैल्यू है 10⁻³ और इसका वैल्यू है फॉर एग्जाम्पल 10⁻⁴, दोनों को अगर मैंने मल्टीप्लाई किया तो कितना आंसर मिलेगा, 10⁻⁷। तो वो बहुत छोटा हो गया, इतना छोटा हो गया, हम क्या कर सकते हैं, इसको इग्नोर कर सकते हैं। तो सिंस DP इज स्मॉल
dV is also small, so their product will be very very small. So hence we can neglect this term, that is dP into dV can be neglected. तो हम यहाँ पे क्या करने वाले हैं, इस टर्म को हम नेग्लेक्ट कर देंगे. Why? Because they are very very small. So next I'll get W is equal to, सिर्फ क्या बचेगा तुम्हारे पास, माइनस पी आई डी वी. ये वाला पार्ट क्या ले लिया हमने, इग्नोर कर दिया. नाउ इंटरनल प्रेशर. अब प्रेशर किसका है इस केस में, इंटरनल प्रेशर इज प्रेशर ऑफ द गैस. नाउ वी कैन अप्लाई द आइडियल गैस इक्वेशन ओवर हियर. व्हाट इज आइडियल गैस इक्वेशन? आइडियल गैस इक्वेशन के अकॉर्डिंग PV is equal to nRT. So I can say that P is equal to nRT upon V. Okay, so ये क्या हो गया, गैस का इंटरनल प्रेशर. सो हम क्या करेंगे, इंस्टेड ऑफ PI हम क्या पुट कर देंगे, nRT by V. So W is equal to minus integration nRT upon V dV. Okay, now number of moles of gas तो चेंज नहीं होंगे विद रिस्पेक्ट टू टाइम. R भी एक कांस्टेंट टर्म है. एंड यहाँ पे हम अज्यूम कर लेते हैं कि हमने टेम्परेचर को भी कांस्टेंट ले लिया है. इफ आई टेक टेम्परेचर एज कांस्टेंट, कौन सा प्रोसेस अप्लाई कर दिया मैंने यहाँ पे, एक और चीज आइसोथर्मल कंडीशन भी यहाँ पे हमने अप्लाई कर दी है. ठीक है, सो इफ आई अप्लाई दी आइसोथर्मल कंडीशन, टेम्परेचर भी क्या हो जाएगा, कांस्टेंट. तो जितने भी कांस्टेंट्स हैं N, R और T, उसको हम क्या करेंगे, इंटीग्रेशन साइन के बाहर लेके आ जाएंगे. इज माइनस nRT इंटीग्रेशन 1 by V dV. Okay, now next step, nRT is constant. Now integration of 1 by V dV will be what, log V. You know the formula, integration of 1 by x dx is what, log x. Similarly integration of 1 by V dV will be log V. One more thing, we need to apply the limits over here. What is the limit? Initial volume of the gas is V1 and final volume is V2. So limit for volume will be V1 to V2. Okay, so we need to apply the limit, that is V1 to V2. So I'll apply over here V1 to V2. Now how to apply the limits in case of integration? We need to substitute the values. Apply the upper limit, this is known as lower limit. So log of, first we'll apply V2 minus log of lower limit is what, V1. So this way we apply the limit in case of integration. First we put the value of upper limit minus, then we put the value of the lower limit. Okay. Now you know the log rules. According to log rule, what is log A minus log B? Log A minus log B is log A by B. Similarly, log V2 minus log V1 will be what? Log V2 by V1. So this is your formula for the work. Now in this case, this log is a natural log. Natural log means what? With the base E. But we use the logbook. Logbook में there is a base of, log has a base of 10. So in order to solve the numericals, I need to convert this natural log to the log with the base 10. Now how to convert natural log to base 10? You need to multiply your value by 2.303. This is the base. Okay. So this way natural log can convert to log with the base 10. So I multiplied it by 2.303. Rest part will remain the same. nRT log with the base 10 V2 by V1. This is your formula for maximum work. Okay. So if in your question it is specified that you need to calculate maximum work, or they have specified the process is reversible, in that case we will use which formula? This one. Okay. And in rest case, if they have not mentioned for maximum work or for reversible process, in that case we will use the normal formula for work, pressure volume work, that is P external V2 minus V1. So we have two formulas for the work. One is pressure volume work, we apply naturally, and if the concept is related to maximum work or if the process mentioned is reversible, we will use this formula.